مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ تمہارے مقدر پہ رشک رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے، تمہارے مقدر پہ رشک رہا ہے، مدینے کا تم سفر خیریت سے ہو میری دعا سے، کہ مدینے کا تم بلاوا ملا ہے، مدینے کا تم
رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی نیتیں مدنی فیسیں کہ میں داڑھی سجانے کی نیت کر لی, توبہ کر لی ہے, امامہ شریف باندھوں گا, تو یہاں اگر زندہ سلامت یعنی کہ بقی نہیں ملی یہاں آ کر اتنے مدنی قافلے میں اتنے ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا, اتنے مدنی مذاکرے, تو یار کچھ دو نا یار. بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھوں گا, کچھ دیتے بھی جاؤ نا ساتھ میں. ساری دنیا میں اسکرین آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کے گھر والے دیکھتے ہوں گے, 12 سیر خون بڑھتا ہوگا ان کا, تو ہم کو بھی کچھ دو نا یار, کچھ تو ڈال دو ہماری جھولی میں انشاءاللہ. وہ سوال یہ ہے, کیا حج کی قربانی پاکستان میں بھی کسی کو بکری بنا کر کر سکتے ہیں؟ حج کی جو شکرانے کی قربانی ہے نا تمتع اور قران والے پر, تو وہ واجب ہے شکرانے میں. یہ بقرعید والی قربانی نہیں ہے جو صرف مالدار کو ہوتی ہے, بلکہ وہ غریب پر بھی واجب ہے, فقیر پر بھی وہ قربانی واجب ہے, اور اس کا حدود حرم میں ہی ہونا واجب ہے, اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے چھری پھر جائے. 10 کس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب 12 تک اس کا ٹائم ہے. مگر یہ ترتیب, کنکری پہلے ماریں گے, کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں گے, اس کے بعد حلق, کنکریاں مارنے کے بعد اس کی قربانی کا سمجھو کہ وہ وقت آ گیا. 10 تاریخ کو پاکستان میں نہیں کر سکتے وہ حج کی قربانی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, آپ نے تربیت اجتماع میں فرمایا تھا کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لیں اور احرام کو بھی لگا لیں, مگر بعض خوشبوئیں کئی دن تک نہیں جاتی, تو نیت کے بعد بھی خوشبو آئے گی, اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ نیت سے پہلے جو لگایا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بھلے آتی رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اگر یہ امامے میں پہنچے مدینے تو کیا بات ہو. سبحان اللہ. باپا جی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ امام شریف باندھوں گا, اور حج کے ایام میں بھی امام شریف باندھ کر انشاءاللہ. احرام میں نہیں باندھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر اقبال اتاری ہے جی. میں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے, اب انشاءاللہ نہیں ایک بتاؤں. مٹھی اور توبہ کر لیے چھوٹی کی, انشاءاللہ مبارک ہو. انشاءاللہ امامہ شریف بھی رکھوں گا. انشاءاللہ. دوران طواف اگر رونا آ جائے تو اس کے بعد انسان وہاں دعائیں نہیں پڑھ سکتا, نہیں ذہن میں ہوتی ہے, تو پھر اس طواف پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ طواف میں دعائیں پڑھنا شرط نہیں ہے, افضل ہے, اور افضل ترین دعا درود پاک ہے. اگر رونا آ جاتا ہے, رونا آنا چاہیے, تو روتے روتے بھی دعا ممکن تو ہے, کم مطلب چلا کے دعا پڑھنی ہے اپنے کو, آہستہ ہی تو کرنی ہے. اور رونا عام طور پہ آتا بھی دعا میں آدمی کو, جب دعا میں سے الفاظ آتے ہیں, اپنے گناہ یاد آتے ہیں, تو بندہ رو لیتا ہے. بھلے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے ہیں, یہی مزے کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے نکلے. ایک مشرق میں لفظ آ رہا ہے, ایک مغرب میں لفظ آ رہا ہے. ہم لوگ جو نپے تلے الفاظ بولتے ہیں نا, وہ مزے کے نہیں ہیں. حقیقت یہی ہے کہ وہ کبھی کچھ کہہ رہا ہے دعا مانگنے والا, کبھی کچھ بول, کبھی کچھ, اس کے بہت جائز الفاظ نکل رہے ہو, یہ بہت ہے نا انسب ہے. کیونکہ بناوٹیں, سجاوٹیں, مسجع, مقفع,
जुमलों की तो दुआ में वैसे मुमानअत भी है, काफिया आराई और इसमें दुआ में नहीं करनी। हाँ, बिला तकल्लुफ काफिया आराई होती है ना तो हर्ज नहीं है, तकल्लुफ के साथ काफियादार दुआ ये मना है। बिला तकल्लुफ ये नहीं करना पड़ता तकल्लुफ तो ठीक है, जैसे अशार होते हैं तो उसमें बिल्कुल नपेतुल अल्फाज होते हैं, काफिये भी होते हैं तो उसमें हर्ज नहीं कि वो पढ़ने में तकल्लुफ नहीं हो रहा। वो अल्लाह करे वहाँ रोना आए तवाफ में, हर जगह रो तो है ही रोने का मकाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद चूमा, हजर अस्वद को सआदत बख्शी के अपने होठ उस पर रखे, होठ मुबारक, क्या खुश नसीबी है हजर अस्वद की भी। तो आप रोने लगे, फिर देखा, इल्तिफात फरमाया, देखा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रहे थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, ये रोने ही का मकाम है। तो ये वहां नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे? अल्लाह की बारगाह में, उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में, उसकी याद में, उसके खौफ में तो रोना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह एक बार इरशाद फरमाया कि मैं सूरह तकासुर पढ़ता हूँ, तुम में से जो रोएगा उसके लिए जन्नत है। उसमें कब्र का बयान है, जहन्नम का बयान है, बहुत यानी कि वो खौफ खुदा दिलाने वाली सूरत है। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी रोए, सहाबा भी बाज रोए, बाज ना रोए। और फिर इरशाद फरमाया मैं सूरह तकासुर पढ़ता हूँ, जो रोए उसके लिए जन्नत। और आगे चलकर कुछ इस तरह भी है कि जो ना रो सके कम अज कम वो रोने ऐसी सूरत बना ले, न बा कोशिश रोए, रोने ऐसी सूरत बना ले। तो ये कुरान करीम के बारे में एक हदीस है कि ये गम के साथ उतरा है, हुज़्न गम के साथ उतरा है, और इसकी तिलावत भी गम के साथ की जाए, हंस हंस के नहीं, रो रो कर या रोने ऐसी सूरत बना कर गम ज़दा अंदाज में कुरान करीम की तिलावत की जाए। तिलावत जब हो रही हो तब भी उसको गम के साथ सुने और रोए। कलाम किसका है भले समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, हम अजमी लोग हैं, पढ़े नहीं है अरबी, तो कम से कम ये कि ये ज़हन में तो मेरे रब का कलाम है, रोए, रोना आए तो बड़ी सादत की बात है। वहाँ खूब रो रो के करना दुआएं, वहाँ खूब रो रो के करना दुआएं, करना दुआएं के दर हर घड़ी रहमतों का खुला है, के दर हर घड़ी रहमतों का खुला है। मदीने का तुमको बुलावा मिला है, नजर प्यारे काबे पे पहली पड़े जब, नजर प्यारे काबे पे पहली पड़े जब, तो रो रो के करना दुआ मशवरा है, तो रो रो के करना दुआ मशवरा है। मदीने का तुमको बुलावा मिला है, तुम्हारे मुक़द्दर पे रश का रहा है। मदीने का तुमको बुलावा मिला है। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, आपसे ये सवाल है
کہ اگر احرام کی چادر کے اوپر سے دوسری چادر اوڑھ لی یا سوتے ہوئے اوڑھی تو اس کا کیا احتیاطیں ہوں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس وہ اگر ایک چادر پر دو چادریں رکھ لی، 3 رکھ لی، 10 رکھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پہلے سے اس پہ عطر وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، یہ خیال رکھیے، پاک چادریں ہوں۔ یا سونے میں بھی اوڑھنے میں حرج نہیں، اگر چہرہ بچا کر اور سر بچا کر اس کو اوڑھتے ہیں تو پھر تو سلی ہوئی چادر اوڑھیں جب بھی حرج نہیں ہے، لیٹے لیٹے جو اوڑھتے ہیں نا، ہے نا، سلی بھی، ہاں حرج نہیں ہے، بھلے پاؤں بھی چھپ جائے کوئی حرج نہیں۔ جیسے بلینکٹ وہ اوڑھ سکتے ہیں سوتے ہوئے، اس کناریاں بنی سلی ہوتی ہے، تو چہرہ اور سر بچانا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ابھی جنہوں نے سوال کیا، انہوں نے بکی نہ ملی تو واپسی پر 30 دن کا مدنی قافلے میں سفر کی نیت پیش کر۔ سبحان اللہ، تاریخ مل جاتی تو مدینہ سبحان مدینہ۔ اللہ۔ اس میں ان کو بھی ہدف یاد رہے گا تاکہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وہ ٹائم نکال سکیں۔ ویسے واپسی کی تاریخ 15 محرم ملی ہے، 1 ربیع النور شریف کو پیش کر رہی ہیں۔ الحمدللہ، واہ کیا بات ہے مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فضیل اتاری خاردرز کراچی سے۔ بابا نیت کی ہے داڑھی کی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور الحمدللہ مدنی قافلے کا مسافر بھی ہوں۔ اور بابا جانی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حدود حرم کے بارے میں کچھ بتائیں، نیز حدود حرم کے متعلق کچھ مدنی پھول اور احتیاطیں ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے سائیں بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا، اللہ کرے یہ مبلغ بن کر تمہیں مچا دے سنتوں کی، داڑھی بھی پوری، امامہ بھی پورا۔ اب تو جائیں مدینے رہے یار، مدینے جانے کے بعد تو زندگی کا انداز ہی کچھ اور ہونا چاہیے۔ حج مبرور کی علامت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ اب پہلے حج مبرور کی نشانی یہ کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ تو اچھے سے مراد یہ تھوڑی کہ موٹا تازہ ہو کر پلٹے، حسین ہو کے پلٹے، نیک بن کے پہنچے۔ پہلے نیکیاں کم تھی تو زیادہ ہوں، پہلے اگر فرض نمازیں پڑھتا تھا تہجد گزار اللہ کرے بن جائے، اشراق چاش ثوابین کا پابند ہو کر وہاں سے پلٹے۔ رفیق الحرم ہے، حدود حرم کی ہے وضاحت۔ اچھا، میں حدود حرم کی اگر یہ پڑھ کے بتا بھی دوں گا یاد تو کسی کو رہے گی نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجد الحرام کو لوگ حرم شریف بولتے، کوئی شک نہیں وہ حرم شریف ہے، لیکن حرم شریف وہیں تک محدود نہیں ہے۔ وہ جب جدہ شریف سے مکہ مکرمہ کے لیے آپ آ رہے ہوں گے نا، تو وہاں وہ آئے گے بیر شمیس، ابیار شمیسہ بھی بولتے ہیں، کہ وہاں کچھ کنویں ہوں گے، ابیار تو بیر کی جمع بیر منے کنواں، تو وہاں کوئی مخصوص کنویں ہوں گے جو اپنے تو بس میں آتے ہیں تو نظر نہیں آتے، وہ تو وہ ایک مقام ہے، تو وہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے، غالباً بورڈ بھی لگا ہوگا، تو وہاں سے حرم کی حد اس طرف سے شروع ہوتی ہے، پھر اس طرح چاروں طرف حرم کی حدیں بنی ہوئی ہیں اور وہ میلوں میل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے تو وہ جنگل کے شکار بھی حرام ہے حرم کے، تو پہلے اس طرح ہوتا ہوگا نا، اب تو وہ دور رہا نہیں کہ وہ ہرنے مارے اور شکاریں کرے کوئی، تو لیکن اب بھی شکار حرام ہی ہے، ہو سکتا ہے اب بھی کرتے ہوں کرنے والے۔ تو حدود حرم میں شکار، حاجی تو حاجی، محرم تو محرم، غیر محرم کو بھی اجازت نہیں ہے حدود حرم میں شکار۔ تو یہ حدود حرم بہت یعنی کہ طویل ہے، اور اس میں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا ہوں، پچھلے 15 برس سے سوئی میں مقیم ہوں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں
سوال یہ ہے کہ جو حج کا خطبہ نہ سن سکے اس کا حج ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیر. آپ سوئی من بلوچستان جی جی اور بغیر زلفوں کے مقیم ہیں 15 سال سے. ابھی حج کی وجہ سے ہی کٹوا لی بابا. یہ کس نے کہہ دیا حج کی وجہ سے زلفیں کٹوانی پڑتی ہے؟ چھوٹی کروا لی ہو تو فلائٹ کو دیر ہوگی نا آپ کو؟ 21 تاریخ کو. 21 تاریخ کو. جی اچھا انگریزی 21 تو میرے کو پتا نہیں کون سی ہے. انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ 14 ہے نا. تو اتنی ایک ہفتہ ہے باپا. تو اتنے دن پہلے زلفیں دے. چلو بھائی احرام تو باندھ لو, بھول گئے شاید, چادریں بھی لپیٹ لو. ایک یہ میرے آقا کی سنت ہی رہ گئی تھی کہ جو اتنی جلدی. تو یہ سنتیں ہیں آقا کی. احرام میں اگر بال جھڑتے ہیں تو بے شک بال اتار دیے, لیکن ابھی سے تو احرام شروع ہی نہیں ہوا نا. اتنی دیر سے کیوں اپنے آپ کو سنت سے آدمی فارغ رکھے؟ گناہ نہیں ہے زلفیں نہیں رکھتا تو, لیکن رکھتا تو ثواب تو ہے, سنت کی نیت سے رکھتا ہے تو اس لیے وہ. اچھا پھر یہ کہ اگر کسی کا بال نہیں جھڑتے تو وہ بال اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ ان بالوں کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جن کے جھڑتے ہیں اتار کوئی حرج نہیں. تو یہ آپ نے سوال کیا کہ حج کا خطبہ نہ سنیں, تو حج کا خطبہ نہ شرط ہے نہ حج کسی امام کے پیچھے پڑھا جاتا ہے. عوام کی ایک تعداد ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ حج تو وہی ہو امام کے پیچھے پڑھا جاتا ہے. اور مجھے ایک چٹکلا یاد آ گیا, یہ بہت پرانا واقعہ ہے کہ ہم مطلب وہ الحمدللہ وہ حاضری ہوئی تھی عرفات کی, وہ پیدل تھے. اب وہ بھیڑ شروع ہو گئی, خطبہ اور نماز کی جو بھیڑ ہوتی ہے نمرا شریف پر. ہم اپنی جگہ کی تلاش میں, ہم کو تو وہاں سے گزرنا تھا. وہ کوئی پنجابی حاجی تھا, اس نے آواز لگائی, اوے ہن حج تو پڑھ لو. لگا یہ چٹکلا یاد آ گیا. وہ بیچارہ سمجھتا تھا کہ ابھی یہ امام صاحب حج پڑھانے والے ہیں. سمجھتا بھی ہوگا. اب بھی جو ہے نا یہ تعداد ملتی ہیں تو وہ جو حج وہاں پڑھتے ہیں نا جا کے, وہ بھی نمرا میں امام کے پیچھے حج پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں, حج کسی اقتدا میں, اقتدا یعنی کہ بہرحال ہے کہ حج کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا, نہ امام کے آگے, نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. نہ اس سے خطبے کا حج سے کوئی یعنی کہ شرائط سے کوئی تعلق ہے اس کے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی نے معاذ اللہ اگر میدان عرفات میں احرام کے ساتھ جانے اور ایک بھی نماز نہیں پڑھی, جو نمازیں آتی ہیں نا وہاں, اگر ایک بھی نماز نہیں پڑھی جب بھی اس کا حج ہو گیا. مثال کے طور پر بے ہوش ہو گیا, یہ تو ممکن ہے, بے ہوش ہو گیا, اب پڑھا نماز تو نہیں پڑھے گا, وہ کہاں پڑھے گا, ہوش ہی نہیں, حج تو اس کا ہو جائے گا. اور اگر تندرست ہے سب کچھ جان بوجھ کر نعوذ باللہ نماز قضا کر دی تب بھی اس کا حج ہو جائے گا. میدان عرفات دکھا دیا, سبحان اللہ. حاجیو اپنا مقام دیکھ لو یہیں سے. کیا بات ہے تو کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں, ایسا بھی کوئی سبب ہو جائے آپ کے ساتھ دیکھیں وہاں چل کر, کوئی سبب ہو جائے کہ میں ان کے ساتھ میدان عرفات میں حاضری میں سعادت پالوں. جبل الرحمہ, مسجد نمرا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے, باول مدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ عرض ہے, دوران حج اگر صدقہ واجب ہو جائے تو شرعی فقیر کہاں تلاش کریں؟ وہاں مانگنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ صدقہ اگر واجب ہو جائے تو حرم کے فقراء کو دینا افضل ہے. اگر وطن میں چاہے تو بھی دے سکتا ہے, دم وہیں دینا ہوگا حدود حرم میں. تو وہاں اگر کوئی فقیر کی وضع میں ہے تو اس کو دینے میں حرج نہیں ہے. ویسے یہ کہ واقعی وہاں فقیر کا تعین ہے دشوار ویسے, کیونکہ وہاں جس طرح کے فقراء اب دیکھے جاتے ہیں وہ آزمائش والے بھی اس میں ایک تعداد ہوتی ہے. یعنی وہ وہیں کام کرتے ہوتے ہیں, بعض پاکستانی, ہندوستانی, مختلف, اور یہ آپ جیسوں کو دیکھ کر یہ آ جاتے ہیں.
मेरा ये गुम हो गया, मेरा वो गुम हो गया, कर्ज बहुत चढ़ गया है, वगैरह वगैरह। एक दूसरे के वहाँ भी प्रोफेशनल फुकरा भी महसूस होते हैं कि प्रोफेशनल होते हैं, और प्रोफेशनल फ़कीर जो है वो शरई फ़कीर होना इसका बहुत मुश्किल है। वहाँ लोग इन पर नोटें बरसाते हैं, रियाल बरसाते हैं। प्रोफेशनल पेशावर में शायद कम समझेंगे, वो पेशावर भी खैबर पुख्तूनख्वा पहुँच जाएंगे। तो प्रोफेशनल जो है ना कि जिसका धंधा बना लेते हैं जो भीख मांगने का, इनको देना जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन कंफर्म पता नहीं है, और अगर जहन बनता है कि ये फ़कीर लगता है और है भी फ़कीर जैसा, तो दे दिया तो सदका अदा हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मेरा नाम ज़फ़र इकबाल अतारी है। मैं आपकी बरगाह में मेरा सवाल है कि मुज़दलिफ़ा में अगर कंकरियाँ छोटी न मिले और बड़े पत्थर को तोड़कर कंकरियाँ बनाना मकरूह है, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो गालिबन लहजा तो कुछ आला हजरत की याद दिला रहा था। पठान भाई लगते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। जी पापा। बड़ा पत्थर तोड़कर कंकरियां बनाना मकरूह है। ये मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा फेल है। और छोटी कंकरियां आपको नहीं मिले तो अल्लाह कर हमारी मुलाकात हो जाए, हम मदद करेंगे आपकी। काश मेरी हाजिरी हो जाए। तो वहाँ कंकरियां करोड़ों होती हैं, सैकड़ों भी नहीं बनूंगा, हजारों भी नहीं बनूंगा, इतनी कंकरियां होती है। आप ढूंढने वाले बने तो कंकरियां आपको मिलनी है। वो मीलों मील तक मैदान फैला हुआ है, इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। बड़ा पत्थर तोड़ने की हाजत नहीं होगी। पहली बार जा रहे होंगे जब ही इन्होंने ये सवाल किया, वरना कंकरियां इतनी होती है कि ये भी अल्लाह का करम है। इतनी बरकत होती है कि लाख क्या 1 करोड़ हाजी भी अगर ढूंढने पे लग जाए, कंकरियां ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। बाबा आपने भी तो ऑफर दी है ना, इंशाल्लाह। मैं अल्लाह करे मैं खुश आपके साथ होंगे, हम इंशाल्लाह इनकी मदद करेंगे बाबा। अज़रा तफन्नुन खुश तबई में अर्ज किया, हम मिल गए तो इंशाअल्लाह हम आपको। अब जब ये कंकरियां नहीं मिलती जिसको, तो उसको मेरे ऐसा कंकर का मिलेगा, लाखों में गुम, वो कैसे मिले यार? वहां कोई आदमी थोड़ी मिलता है। फिर ये बोलेंगे कि मैंने दुआ मांगी थी, हमारा दुआ कबूल हो गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। रफीकुल हरमैन सफ़हा नंबर 190 और वो मदनी फूल नंबर 7। रमी के लिए बेहतर यही कि मुज़दलिफ़ा से कंकरियां ली जाएं, मगर लाजिमी नहीं। दुनिया के किसी भी हिस्से की कंकरियां मारेंगे, रमी दुरुस्त है। तो बेहतर और मकरूह तंज़ीह की यहाँ, तो इसलिए वो अगर वहाँ नहीं मिली तो भले दूसरे मकाम से ले, लेकिन बड़ा पत्थर तोड़कर ना बनाए, कि मकरूह तंज़ीह है। मकरूह तंज़ीह भी गुनाह नहीं होता, लेकिन नापसंदीदा फेल होता है। हाजी चूंकि आ रहे हैं और आपसे मदनी फूल ले रहे हैं, एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है, क्योंकि अब हर हाजी ऐसा लगता है जितना अभी कैमरामैन बना हुआ है, सबके पास मोबाइल फोन है। तो अब यहाँ ग्रुप फोटो बन गया है। काबे शरीफ को बाकायदा पीट करके मर्द औरत पूरी फैमिली खड़े होंगे, भाई बताएंगे कि जरा हमारी तस्वीर बता दें। अब काबे शरीफ को भी पीट हो रही है, बल्कि यहाँ तक देखा कि ऐन रोज़ा रसूल के सामने, सुनहरी जालियों के सामने, सुनहरी जालियों को पीट करके अपनी तस्वीर बनवाएंगे, गुंबद पीट करके अपनी तस्वीर बनवाएंगे। वो मकान है जहाँ आप हमारे की निगाहें नीची हो, रिक्कत का आलम हो। अब ये तस्वीर खिंचवाने की वजह से ऐसा अजीब व गरीब मंजर लग रहा होता है। इस्लामी बहनें अलग तस्वीरें खींच रही हैं, इस्लामी भाई अलग तस्वीरें खींच रहे हैं। वो रहनुमाई फरमाए कि इस मकाम पर आकर ये अंदाज इख्तियार करना कैसा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर मोबाइल ही में रहने दिया तब तो है, तो अगर कोई और वजह नाजायज की ना हो तो जायज़ है, लेकिन ये कि वो इसकी प्रिंट आउट ना करे, वरना गुनाहगार होंगे। तो ये कि वहाँ कोई पिकनिक थोड़ी मनाने गए यार, वहाँ गुनाह बख्शवाने जा रहे हैं और फिर वहाँ इस तरह के अंदाज इख्तियार करना और नऊज़ुबिल्लाह पीठे कर करके वो फोटो में पढ़वाना। तो ये पीठ करना अगरचे गुनाह नहीं है, लेकिन बेअदबी तो है ना।
तो खुसूसन सुनहरी जालियों की तरफ पीठ करना बहुत बड़ी जुर्अत है। नहीं तो ऐसा ये वहाँ इस तरह ना करें। वहाँ ये टेलीफोनिया की बीमारी बहुत बढ़ गई है और कुछ है ना कि लाइलाज सूरत इख्तियार करती जा रही है। बच्चे के हाथ में ये मुसीबत आ गई। इसकी वजह से इसके माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है। हाँ, जिसको हाजत है बेशक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे, लेकिन गलत इस्तेमाल बहुत हो गया इसका। अल्लाह ताला हाजियों को और सब मुसलमानों को तौफीक खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ गनी अत्तारी, सरारी, ज़िला सांगड़। बापा जान, मेरा एक सवाल है, क्या हाजी को अपने वतन में कुर्बानी करना होगी? अगर हाजी गनी है और उस वक्त उन दिनों मुसाफिर नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है वो बकरीद की। तो अब ये चाहे वहाँ करे चाहे अपने वतन में करे, दोनों सूरतें जायज़ हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि वतन में अगर करनी है तो जहाँ हाजी मौजूद है वहाँ, और जहाँ कुर्बानी होगी वहाँ कुर्बानी का वक्त होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ सपोज करें कि पीर शरीफ को यहाँ ईद है और मक्का मुकर्रमा में इतवार को ईद हो गई, 10 तारीख हो गई, तो अब वहाँ इतवार को हाजी ये कुर्बानी अपनी बकरीद की कुर्बानी पाकिस्तान में करेगा तो अब नहीं होगी कि पाकिस्तान में ईद तो पीर को है। ये समझा रहे कि मिसाल दी, तो वक्त वहाँ भी हो जहाँ कुर्बानी की जाए वहाँ भी हो, ये ज़रूरी है। अगर हाजी ने जैसे कि भले इसके वतन में पीर को ईद है और जहाँ मौजूद है वहाँ इतवार को ईद हो गई, तो अब हाजी वहाँ वहीं पर चाहे तो कुर्बानी कर सकता है इतवार को, ईद के दिन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अदनान अत्तारी, मापुतो, मोज़म्बिक से। माशाअल्लाह। बापा, मेरा सवाल ये है कि क्या हाजी अपना हलक खुद कर सकता है? जब एहराम से बाहर होने का वक्त आ गया तो अपना हल्क कर सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। अपना हल्क कर ले, दूसरे का भी कर सकता है ना। वक्त आ गया तो बेहतर ये कि पहले अपना कर ले फिर दूसरों का भी कर ले हल्क। जब यही कि वो एहराम से बाहर होने का वक्त आ गया हो, इसके अलावा दूसरे का भी हल्क नहीं कर सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। बापा, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से जो इस वक्त हाजी जा रहे हैं तो ये इन मदीने शरीफ हज से पहले इनकी हाज़िरी होगी इंशाल्लाह, और अगर बकी ना मिली तो फिर अबियार अली से एहराम बांधकर ये हाजी उम्रे के लिए मक्के शरीफ आएंगे। तो अगर इस वक्त ये आफाकी हाजी हज क़िरान की नीयत से एहराम बांध ले और 4-5 दिन या इतना गैप होता है तो इस तरह ये हज क़िरान की नीयत से एहराम बांध सकता है? अच्छा, उम्रा करने के बाद मदीने जाए और मदीने से फिर किरान की नियत करें। ये अपने फतावा वकारुल फतावा में सफ़ा 449 ता 450 जिल्द दुवम मुफ्ती आदम पाकिस्तान की खिदमत में सवाल हुआ है। ज़ैद हज क़िरान करना चाहता था मगर हुकूमत पाकिस्तान ने उसे हज से कबल मदीना तैयबा भेज दिया। अब ज़ैद मदीने से हज क़िरान का एहराम बांध सकता है या नहीं? नीज़ हुदूद हरम से निकलकर हज क़िरान का एहराम बांधा जा सकता है या नहीं? अल जवाब,
सूरत मस्कूला में ज़ैद मदीना मुनव्वरा से हज के क़िरान का एहराम बांध सकता है। मीकात के अंदर रहने वालों के लिए क़िरान जायज़ नहीं। इसी तरह मीकात से बाहर वाला जब हरम में पहुंचा और उम्रा कर लिया और मीकात से बाहर ना गया तो क़िरान नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बाहर गया तो क़िरान कर सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल आपकी वारगा में यह है कि अगर कि जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी हो तो तमाम लोगों की तरफ से किस तरह सलाम अर्ज़ किया जाए? वो क्या ऐसे अल्फाज हों जो हमें कहने चाहिए? मैंने आपको जिन्होंने सलाम का कहा है कि मेरा सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज़ करना और आपने हाँ कह दिया तो ये सलाम पहुंचाना वाजिब हो गया। अब जानबूझकर नहीं पहुंचाएंगे तो गुनाहगार होंगे। अच्छा, अब बाज़ लोग ये कहते होंगे कि याद रहा तो हम सलाम कह देंगे, याद रहा तो कह देंगे, ये ना कहा जाए कि इससे सामने वाले को झटका लगेगा या वो भैंसिया हुआ तो फिर बड़बड़ करेगा, हम गरीबों को कौन याद रखेगा, और इस तरह की खामा का वो लिप करेगा। और बाद ईज़ा भी होती है कि आदमी को मान होता है एक आदमी पर कि यार मुझे थोड़ी भूलेगा, फिर आप बोलोगे कि यार याद रहा तो कहूँगा। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, भूल गया तो वैसे ही माफ़ है, गुनाहगार नहीं है, याद हुआ और ये कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी किसी का बोले, कोई जैसे बोले कि भाई अच्छा जा रहे हो तो मेरा सलाम अपने निगरान को बोल देना, तो आप बोलोगे याद रहेगा तो बोलूँगा, तो अब मेरी भी खुशफहमियाँ होती है ना, अगर मेरा सलाम नहीं पहुँचाएगा ये तो भूल जाएगा, ऐसा है। एक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा झटका लगेगा ना, तो इसलिए मतलब ये कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि याद रहेगा तो पहुँचाऊँगा, याद रहेगा तो ही पहुँचाएगा, भूल गया तो माफ़ है। तो बहरहाल अगर हाँ कह दिया तो अब उसको पहुंचाना वाजिब हो गया। तो हाँ कहने में सोच लें कि अगर बहुत सारे जिनको सलाम बोलते ना, जैसे मुझे बहुत सारे बोलते थे, अरे मेरे लिए तो याद रखना मुमकिन नहीं है, याद हो तब भी इतनों की लिस्ट बयान करने का टाइम, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। तो इसलिए वो जहां नाम भूल गए, मैं वहाँ की बात करूँगा कि बहुत सारों ने सलाम बोला है, नाम याद नहीं है, और तो सलाम इन अल्फाज में अर्ज़ अगर कर दे, ये मेरी अपनी मतलब है कि सोच है कि या रसूल अल्लाह, जिन्होंने आपके लिए मुझे सलाम का अर्ज़ किया है कबूल फरमा लीजिए। जो आपको सलाम अर्ज़ करा, जिन्होंने मुझे आपके लिए सलाम करने का कहा है तो हुजूर उनका सलाम कबूल कर लीजिए। तो ये सलाम आपने पहुंचा दिया। नाम का ले अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नाम बनाम। ये भी एक मतलब फजूल गोई के दरवाजे बाज़ खुलते हैं कि वो मेरा सलाम बोला कि नहीं, नाम लेकर मेरे लिए दुआ की कि नहीं। ये हाजियों को ये सवाल होते हैं, और ये हाजी भी कम नहीं होते, हाजी भी इस तरह की बातें करते होते हैं बेचारे। तो ये किसी को बोलना कि मेरा नाम लेकर दुआ की कि नहीं, हाजी को ये बोलना या किसी को भी बोलना, ये उसको शर्मिंदा करने वाली बात है। अब बाज़ औक़ात वो मुरूवत में झूठ में पड़ जाएगा कि वो उसने वो नाम, तो उसको सबका याद तो रहता ही नहीं है ना नाम। तो ना सब इतनी ऐसे आम लोग होते हैं कि जिनका नाम याद रहे, बाज़ अहम होते हैं। अम्मी ने बोला तो बेटे के हक में अम्मी अहम होती है कि अम्मी का तज़किरा करेगा, अब्बू का तज़किरा करेगा। बड़े भाई को औलाद नहीं है तो उसका बोलेगा कि या अल्लाह मेरे बड़े भाई को औलाद दे दे। ये नफ्सियाती तौर पे इनके नाम याद रहेंगे, ये आपकी अहम शख्सियात है, हर फर्द का याद नहीं रहेगा, बहुत दुश्वार है। तो इसलिए बोलना, तो फिर ये बोल देगा हाँ तुम्हारा नाम लेकर, क्यों नहीं, नाम लेकर दुआ की, तो ये फिर झूठ हो जाएगा, गुनाह होगा। तो इसलिए ऐसा सवाल किया ना जाए और सबके लिए दुआ कर दी जाए। सारी उम्मत के लिए दुआ आमतौर पे लोग करते ही हैं, तो इस तरह इज्तिमाई दुआ में ये कह दिया जाएगा मैंने इज्तिमाई दुआ की, जबकि की होती। अब मगर वो सर खाएगा, बाज़ होते चिकने कि वो बोलेंगे कि मेरा नाम लेकर दुआ की कि नहीं, तो फिर अगर वो जान पे आ जाए तब भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है कि मार नहीं डालेगा आपको।
आप बोल देना कि यार नाम तो मैं किस किस का लूँ, नाम नहीं ले सका। अब थोड़ा लेक्चर देगा, हाँ भाई हमको भले बोल ले, सुन लेना और क्या करें, ये बोलते लोग। इस तरह के वास्ते मुझे बहुत पहले पढ़ते थे, अब तो थोड़ा कमी हो गई है, पहले बहुत पढ़ते थे। यार दुआ नहीं करते, दुआ हुआ नहीं करते, परेशानी दूर नहीं हो, दुआ हुआ नहीं करते, वो बोलते थे बेचारे होशियार। बोलते हैं अकेले अकेले मदीने जा रहे हो, अकेले अकेले मदीने जा रहे हो, तुम भी चलो, क्या मना करता हूँ, चल मदीना कह दे, आप खुश कर दे उसको, यार जाएगा जो भी चल मदीना कहा तो आप, और अपने ही पैसों से जाएगा, अपने पैर पे जाएगा। चल मदीना का ये मतलब थोड़ी है कि सारों के खर्चे भी जो चल मदीना के उठाए। इसी तरह आपको ये भी लोग कहेंगे हर जगह मेरे लिए दुआ करना, ये बोलते हैं पांचों नमाजों में मेरे लिए दुआ करना, कोई बोलेगा तहज्जुद में मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, फिर बात बड़ी अजीब बात करते हैं, खास वक्त में मेरे लिए दुआ करना। अब ये ऐसा तो कौन पावरफुल आदमी हो तो बोले अच्छा ठीक है, खास वक्त कौन सा ये आप मुझे बता दीजिए, अब मुझे वही वक्त याद भी रह जाए, दुआ भी कर दीजिए ताकि मैं दुआ करूँ। खुसूसी तो यहाँ में खुसूसी और उमूमी का फ़र्क भी बता दीजिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लोगों की आदत होती है हर वक्त दुआ में याद रखना, यूँ भी बोलते हैं तवाफ में भी करना, तो मदीने में दुआ करना, मक्के में दुआ करना, हज में दुआ करना, ये बेचारे बोलते हैं, ऐसे मौके पर सुन लेने में आफियत है, हाँ में हाँ नहीं करना, या फिर आप निभा नहीं सकोगे। क्या करें बापा, वो हाँ में हाँ लिए बगैर छोड़ेगा ही नहीं बापा, वो सुन ले, मुस्कुरा ले, अरे खैर है खैर है इंशाअल्लाह करके वो, अब ये सबको घुमाना आता नहीं, इसको यहीं से मदीने में घुमा दे क्या। लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहेगा और नीयत है कि नहीं करूंगा, तो फिर ये इंशाअल्लाह कहने का मौका नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ुबैर अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना से हूँ। बाबा जान की खिदमत में मेरा सवाल अर्ज़ है, कुर्बानी का जानवर अपनी आँखों से देखना मुमकिन नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया जाए? बाबा मैं 3 दिन की नियत करता हूँ हज पे आने के बाद। नहीं, आपको तो 12 दिन की करनी चाहिए इंशाअल्लाह। दाढ़ी इमामी की तो बात ही नहीं की आपने, छेड़ा ही नहीं इसको तो। नहीं बाबा जान, दाढ़ी की नियत कर चुके हैं, पूरी रोज़ा मुबारक पे तोहफा लेके जाना है। दाढ़ी मुबारक जी बाबा जान, और इमाम शरीफ भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो ये जब तक मुंडाई घटा इसकी तौबा करनी है, रख लेने से पिछला गुनाह माफ नहीं हुआ, तौबा तो करनी वाजिब है। बाबा जान दुआओं की दरखास्त है आपसे भी, मेरा सलाम जज़ाकल्लाह। सारे मुसाफिरीन मदीना से मदनी इल्तिजा है कि मुझ गुनाहगार का सलाम मेरे आका को ज़रूर अर्ज करना, मेरे लिए दुआएं बेहिसाब बख्शिश कीजिएगा। ये अपने कुर्बानी का जानवर देखना मुमकिन नहीं है, ये इन्होंने फरमाया तो मुमकिन है, थोड़ी मशक्क़त होगी, जाकर वो जहाँ जानवर मिलते हैं ना वहाँ पहुँच जाए। बाकी किसी और को वहाँ जैसे कि बैंक में वो वहाँ ऑप्शन होते हैं, बैंक से टोकन मिलते हैं, और ये इसमें चक्कर में नहीं पड़ना। और लाखों जानवर जब वो कहाँ से शराइत के मुताबिक लाएंगे, अक्ल काम नहीं कर रही। फिर यह कि हमारी तरतीब है यहाँ कि कंकरी मारने के बाद ही कुर्बानी हो, और ये कुर्बानी सुबह ही सुबह निपटा लेते हैं। तो अगर आपको कुर्बानी का टाइम दे दिया, सपोज करें कि 10 का टाइम दे दिया, आप रश में फंस गए 10 तारीख को, और या तबीयत में कुछ सुस्ती आ गई, ढीले पड़ गए, कोई भी वजह हो सकती है, आप कंकरियाँ नहीं मार सके और हज तमत्तो पर हैं या किरान पर हैं, और 10 बजे का टाइम दिया कुर्बानी का और कंकरी से पहले कुर्बानी हो गई, तो अगर कोई कंकरियों से पहले कुर्बानी करे तो दम वाजिब होगा। कि अगर कंकरियों से पहले कुर्बानी हो गई और अगर मुतमत्ते है या कारिन है तो इन पर दम वाजिब होगा। मुफरिद है तो इस पर दम वाजिब नहीं होगा, क्योंकि इस पर तो वाजिब ही नहीं है ना। कारिन पर 2 दम वाजिब होगा किरान किया है तो इसलिए इधर तो भारी बोलते हैं और सेल्फ सिस्टम, वहाँ जाकर ये बैंक को अपना इमाम बना लेते हैं। यार ये वहाँ भी सेल्फ सिस्टम नहीं, वहाँ मदनी सिस्टम, अपने हाथ से अपनी नज़रों के सामने हो।
बास कारवान वालों की भी बदनवानियां सामने आई हैं, और पैसे भी खावा पीवा जाते हैं बाजू का। तो ये अब इतनी बड़ी इबादत, अब जिंदगी में पहली बार यार जा रहे हैं, इसमें भी सुस्ती। और अफजल ये है कि अपने हाथ से कुर्बानी हो, या अपने काफिले में से जो इल्म रखता हो, मसले समझता हो, जानवर की छांटी जानता हो। वरना वहाँ हर जानवर बोलते हैं हादा कामिल, हादा कामिल। और ये अवाम में बड़ा मशहूर है, यहाँ भी मशहूर है कि दुम्बा और भेड़ 6 महीने की कुर्बानी जायज़ है, ये आम है, बहुत मशहूर है। तो दुम्बे या भेड़ की 6 महीने की कुर्बानी जायज़ है, तो इससे मुराद वो दुम्बा और भेड़ है कि जो 6 महीने के हो गए तो नज़र साल भर के आ रहे, इतने और तगड़े हों। अगर साल भर के नज़र नहीं आ रहे, नज़र ही मुन्ने मुन्ने आ रहे, तो अब उनकी कुर्बानी नहीं होगी, चाहे 9 महीने का हो चाहे 11 महीने का हो। और वो साल भर का देखने में नज़र नहीं आ रहा तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। अब वो देखने में आए कैसे, तो तजर्बा नहीं है, ये भी बात सही है आपकी। तो फिर जोखम क्यों लेते हैं, फिर रिस्क नहीं ले। 2 दांत देख ले, पूरे 2 दांत, ये भी देखने नहीं आते। तो अब तो क्या करें, तो फिर सीखना तो पड़ेगा। 2 दांत किसको बोलते हैं, सारी हम जिसको 32 ही बोलते हैं, 32 उसमें शायद जानवर में पता नहीं होते नहीं होते, गिने नहीं है मैंने, लेकिन 32 होते नहीं होंगे उसमें। तो इसके आगे के जो 2 दांत है ना, ये थोड़े इसमें मामूली सी पीलाहट होती है। और जो दूध के दांत और चाय के दांत हमारे यहाँ बोलते हैं, तो ये पहले तो ये आगे के दांत दूध के गिराता है, जानवर जो है साल भर में गिराता है, बकरा जो है ये। इसके बाद इसके निकलते हैं, और ये निकलते निकलते फिर बड़े हो जाते हैं। तो ये जो दांत है ना, ये थोड़े उभरे हुए होते हैं, और ये जो दूध के दांत हैं इनमें ये थोड़ा नुमाया होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग से महसूस होते हैं। जो आप पिछली दफ़ा गए थे ना, उसमें ये था कि ये गिराता है और फिर 10-15 दिन में इसके निकलते हैं, बड़े निकलते हैं। तो ये दांत थोड़े चौड़े होते हैं, कदरे, जो मैंने देखा अंदाजा किया, और थोड़े मिट्टियले होते हैं, चाय कलर के, थोड़े से नुमाया होते हैं। अगर थोड़ा भी देख लेंगे ना तो नुमाया होते हैं। लेकिन ये बाज़ जगह ठगी बहुत चलती है हमारे यहाँ खासकर, तो वो यूं बड़ी मुश्किल से तो जानवर खोलता है मुंह, और फिर इसमें ये कुछ तरकीब से ऐसा यूं करके वो कोई अपने हाथ में पकड़ के या रख देते हैं दांत, या वैसे ही बोल देते हैं 2 दांत। अब हर एक को दांत की पहचान तो नहीं होती है, वो समझते हैं 2 दांत, खाली देखते हैं बस। तो ये नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत किसी से पूछ कर तजर्बाकार से पहचान करके यहाँ से आप जाइए। वहाँ ये दांत नकली दिखा कर ठगते हो ऐसा सुना नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा बहुत है। तो 2 दांत का लेने में आफियत है, 4 दांत का हो तो ज्यादा अच्छा है, तो अफजल भी है। 2 साल का हो तो ये अफजल है। तो साल में 1 दिन भी कम हुआ ना तो कुर्बानी होगी ही नहीं। अलबत्ता वो दुम्बे में, वही दुम्बे भेड़ में कि साल भर से कम में और 6 महीने से कम नहीं है, 6 महीने या इससे ज्यादा है, और साल भर का लगता है तो कुर्बानी इसकी जायज। और वहाँ हर एक को मैंने कहा ना आधा कामिल, यानी ये कामिल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, यूँ बोलते हैं। 4 दांत वाला, 4 दांत वाला तो झगड़ा ही खलास है मदीना। मगर वहाँ 4 दांत वाला नहीं मिलेगा। वहाँ बड़े जानवर भी हो, ऊँट के भी बच्चे कट रहे होते हैं। हालांकि ऊँट के लिए शर्त है 5 साल से 1 दिन भी कम ना हो, पूरे 5 साल या इससे ज्यादा हो, कम ना हो ऊँट। लेकिन मुन्ने बेचारे वो काट रहे होते। और वहाँ नहर का भी देखा नहीं है, बस ज़बा करते हैं, वो 3 जगह ज़बा करते हैं। तो जहालत है यार, जानवर को तकलीफ है। एक जगह वो भी नहर करना सुन्नत है। अब नहर नहीं किया, ज़बा किया तो मकरू है, फेल मकरू है, गोश्त पे कोई कराहियत नहीं है, जानवर दुरुस्त हो जाएगा, कुर्बानी भी हो जाएगी, लेकिन एक ही जगह। और अगर नहर किया यहाँ यूँ छुरी मारते इधर, तो वो लब्बे से ऊपर ये हल्क पर यहाँ रगे, ये छुरी, ये इसका फन होता है, हर एक नहीं कर सकेगा। वो जो इसके माहिर होते हैं करते हैं कि यूँ मारेंगे फिर यूँ करके निकाल लेंगे तो रगे कट जाएंगी।
तो अब इधर से ज़बा करने की हाजत नहीं है, 3 का एक जगह पे अब ज़बा करने की हाजत नहीं, ये हो गया, ये खून निकलेगा फौरन ऊँट गिर जाता है, देर नहीं लगती। और ऊँट की खाल, ऊँट बहुत बड़ा होता है, ये अपने दीवाने खाले जमा करते हैं, ऊँट की खाल मिलती होगी तो खुश होते होंगे। ऊँट की खाल बिल्कुल पतली होती है, दाम बहुत कम आता है इसका। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मैं गुजरांवाला से आपकी दावत पे लब्बैक करता हुआ हाजिर हुआ हूँ। तो पहले 3 रोज़ा तरबियत नशिस्त में भी हाजिर हुआ था। जी आया नु। अगर हाजी पर दम वाजिब हो जाए तो दम हदूद हरम में ही अदा करना होगा या घर आकर अपने मुल्क में भी दे सकता है? अगर घर हुदूद हरम में है, मक्का मुकर्रमा में हुदूद हरम में, तो घर पे भी दम दे सकते, अलबत्ता हरम की हुदूद के बाहर नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर घर किसी का जद्दा शरीफ में है तो वो मीकात से बाहर है, ताइफ शरीफ में तो मीकात से बाहर है, रियाज में तो मीकात से बाहर है, तो मीकात के बाहर नहीं तो पाकिस्तान, ये सारे का सारा मीकात से बाहर है, तो हुदूद हरम में ही दम देना लाजिम। अगर दम रह गया और यहाँ आ गए मगर दम माफ नहीं हुआ, आप यहाँ से अगर कोई ताल्लुक आते हैं तो किसी को टेलीफोन पर कोई अजीज को बोल दें कि वो आपका हुदूद हरम में दम दे दें आपकी तरफ से, या कोई उम्रे पर जा रहा है, हज पर जा रहा है, उसको बोल दें कि आप मेरी तरफ से दम दे देना, वकील कर दें उसको, ये मुमकिन है। इस तरह होना हुदूद हरम में ये वाजिब है दम का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अशफाक अत्तारी, जमजम नगर, हैदराबाद। बापा आपकी बारगाह में अर्ज है कि कंकरियों को धोने में क्या हिकमत है जबकि वो शैतान को मारी जाती हैं? कंकरियां धोना मुस्तहब है जबकि वो पाक कंकरियां हों, है ना। पाक कंकरियों को धोना मुस्तहब है, नापाक कंकरियां मारना मकरूह है। नापाक को धोने का लिखा नहीं है, मुतलकन कंकरियां चुने तो उसको धो ले, नापाक हो तो कसदन उसको लेना नहीं है, और जिनका पता नहीं है तो वो पाक ही के हुक्म में पाक मानेंगे। पापा ये बात इस तरह से हो रही थी कि शैतान को मारना है तो अब इसके लिए क्या धोना? तो शैतान को मारना है तो मैं जूते थोड़ी मार सकते हैं, कंकरियां ही मारनी है। लोग जूते डिब्बे मानते हैं, जैसे कि नहीं वो शैतान बंधा हुआ है, बंधा हुआ तो अपने इसको तोप से उड़ा दे यार, ये कहाँ बंधेगा इसको। अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दे रखी है, इसको मौत नहीं आएगी, जल्दी नहीं आएगी, आएगी और ऐसी आएगी कि ऐसी किसी को नहीं आई, लेकिन ये जिंदा रहेगा, इसने मोहलत ले ली है। तो ये कंकरियां, ये इसकी जिल्लत है, और सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये अदाएं हैं कि इन्होंने कंकरी मारी। अगर इन्होंने जूते मारे होते तो हम भी जूते मारते, इन्होंने लठ मारे होते हम लठ वहाँ मिलते लठ मारते, लेकिन कंकरियां मारी तो हम तो मनन वाले सोचने वाले नहीं हैं। हमें कह दिया गया दो लो, लब्बैक दोनों है, खलास। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हुसैन अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। प्यारे बाबा जान, सवाल ये है कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में काफ़ी दिल चाहता है कि नंगे पैर फिरें घूमें, मगर खाना काबा और रोज़ा पाक में बैठे हुए अगर दोबारा वज़ू करने की हाजत पेश आए तो वहाँ इस्तंजा खाना और वज़ू खाना साथ साथ होते हैं और पाँव नापाक हो जाते हैं, और बाहर कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ दोबारा पाँव धोए जाएं। तो अब किस तरह से खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा हाज़री दें और नंगे पैर दोबारा दाखिल हों, कोई समझ नहीं आता। प्यारे बापा जान, अगर इसी कोई रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरम तैयबैन में नंगे पैर रहना ये तो चलो अच्छा है, लेकिन पाँव जब मस्जिद करीमन में जाएंगे तो उस वक्त मेले नहीं होने चाहिए। गलियों में फिरने से नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं कह सकते कि नापाक हो गए, या वो गलियों में बाज़ औक़ात पानी भी बह रहा होता है,
وہ پانی بھی جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. بولے کالا ہے، کیچڑ ٹائپ کا ہے یا کیچڑ ہی ہے، تو راستے کی کیچڑ بھی اس وقت تک پاک ہوتی ہے جب تک اس کی ناپاکی کا علم نہ ہو. تو اب یہ کہ میلے پاؤں لے کر مسجدوں میں، مسجدین کریمین میں نہیں جائیں گے، کسی اور مسجد میں بھی نہیں جائیں گے. اس وقت پاؤں صاف ستھرے ہونے چاہیے، دھو لیے جائیں. اور ساتھ میں جس کو ننگے پاؤں رہنا اس کو چپل ساتھ رکھنے ضروری ہے. کوئی تھیلی یہاں سے بنا کے لے جائیں، اس میں چپل رکھیں، تو جہاں پانی وغیرہ بکھرا ہوا ہو تو چپل پہن لیں. بلکہ ہوٹلیں وغیرہ جہاں ہوتی ہے نا تو وہاں بھی وہ تیل اور اس طرح کا آئلی زمین ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی پاؤں میلے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہاں ایسی جگہوں پر تو چپل پہن لیے جائیں. اور مسجدین کریمین میں جب بھی حاضر ہو تو پہلے پاؤں دھو لیں، یہ احتیاط ضروری ہے. وہاں کے حمام میں جانا ہے، استنجا خانے میں، تو وہاں چپل پہنے بغیر نہ جائیں. بھلے آپ بولتے ہیں ہم پاؤں دھو لیں گے آ کر باہر، لیکن اس سے یہ تنفیر عوام کا باعث ہے. لوگ اس میں باتیں بنائیں گے کہ یہ دیکھو ننگے پاؤں یہ حمام میں چلا گیا، اب یہ مسجد میں گندے پاؤں لے کر چلا جائے گا. اگر کوئی حمام میں ننگے پاؤں چلا گیا تو گناہ گار نہیں ہے، اس میں استنجا خانے میں چلا گیا تو، لیکن عوام کی سمجھ میں یہ آئے گا نہیں. اور احتیاط بھی اسی میں کہ چپل پہن کر جائے تاکہ آپ کے پیر جو ہیں وہ خراب نہ ہو. جب تک یقینی معلومات نہ ہو وہ وہاں جو پانی لگ گیا پاؤں میں وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ناپاک ہو گیا پاؤں، لیکن گندے تو وہاں کا پانی طبیعت کو کراہیت تو دیتا ہی ہے، اکثر ناپاک بھی ہوتا ہے. لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے جی، اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے. یہ اصول ہر جگہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا اب حرم شریف میں، مکہ شریف میں، مسجد حرام شریف کے باہر انہوں نے خصوصی طور پر وضو خانے بنا دیے ہیں، تو وہاں پر اگر کسی کو استنجا خانے میں نہیں جانا تو وہ وضو خانے پہ آرام سے وضو کر کے دوبارہ حرم مسجد الحرام میں داخل ہو سکتے ہیں. اچھا، یعنی کہ وہاں صرف وضو خانے ذہن باہر کا جو صحن ہے نا وہاں انہوں نے خصوصی طور پر بنا دیا. اب مگر لوگ جوتے پہن کر ہی جاتے ہوں گے. جی تو مطلب جوتے پہن کر جاتے ہوں گے، جوتے پہن کر وضو کرتے ہوں گے، اور وہاں کے وضو خانوں کے انداز جو ہیں یہاں سے ڈیفرنٹ ہے. جس کا احتیاط کا ذہن ہوتا ہے نا اس کے لیے تو سخت آزمائش ہوتی ہے. تو جیسے کہ اب میں کیا کرتا تھا عام طور پہ وہاں کس طرح بچنے کی صورت میں، کہ وہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ جوتوں اور چپلوں والے پانی میں ہمارے پاؤں پڑے یا ہم پر چھینٹے اڑے. اس میں یہ، اور وہ سیٹ پر بیٹھ کر وضو کرنے کا بھی وہاں ذہن نہیں ہے. سیٹ پر جوتے چپل پہن کر، یہ جوتے چپلوں سمیت پاؤں رکھ کر وہ وضو کرتے ہیں، ہے نا، اکڑوں بیٹھ کر، جوتے چپل پہن کر. اب میں تو اکڑوں بیٹھ کر وضو کرنا وہ بہت دشوار ہوتا ہے میرے لیے، تو میں سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا. تو ہماری کیا ترکیب ہوتی تھی، اب سیٹ پر بھی بیٹھو نا تو وہ کوئی برابر میں آ کر یوں جوتے اور یوں پاؤں اٹھا کر ڈر کر کے پانی مارے نا، وہ جوتوں کا پانی اپنے اوپر آئے. لیکن اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. لیکن طبعاً کراہیت تو آتی ہے، بچنے میں حرج بھی نہیں ہے، بچنا چاہیے، اچھی بات ہے. تو ایک تو یہ کہ اس سیٹ کو ہم پوچھ دیتے تھے، میں الگ سے کوئی رومال کپڑا ایسی چیز رکھتا تھا جو پھر اس کو جیب میں نہیں ڈالتے، وہ اپنے اسی وہ گلے کے بیگ میں یا اس طرح، تو اس سے پوچھ لیں، تو لیے گا جیسے رومال ہو، پوچھ لیا. تو اب جب یہ خشک ہو جائے گا تو پھر اس پہ بیٹھ جائے. اور دونوں طرف کی سیٹیں میں بہت آزمائش ہوتی ہے کہ لوگ آ کر بیٹھ کے بہت چھینٹے اڑاتے ہیں. تو کوشش یہ ہو کہ جب بھیڑ نہ ہو اس وقت آدمی وضو کرے، یا پھر اپنے اسلامی بھائی ہوں وہ کوئی ایسی ترکیب بنا لیں کہ وہاں بیٹھ جائیں، کہ
کہ چیٹے کو نہ اڑانے دے. لیکن جب وضو خانے برش ہو تو اس طرح 2 سیٹیں گھیرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے, لوگوں کو وضو کرنے دیا جائے. جب پھر وضو کر کے میں اپنے چپل میں ڈائریکٹ پاؤں ڈالنے کے بجائے اپنے پاؤں کو تولیے وغیرہ سے پوچھ لیتا, پانی خشک کر لیتا اور پھر چپل پہنتا. اور یہ چپل پہن کر حمام کا جو بھی ایریا ہے وہ عام طور پہ پانی گیلا گیلا وہ ہوتا ہے, وہاں بھی لوگوں کے چپل اور یہ اس لیے وہ اس پانی میں پاؤں پڑتا تو بالکل طبیعت میں مزہ نہیں آتا. تو اب اس میں چپل پہن کر پھر باہر نکلے, اب باہر خشک فرش پر آ کر, کیونکہ پاؤں پہلے خشک کیے تھے اور چپل پہن کر چلے تھے تو پاؤں خشک ہے, اب خشک پاؤں نکال کر خشک زمین پر چلتے ہیں, سب ماربل بچھے ہوئے. اب مسجد الحرام شریف یا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں داخل ہو گئے. میں یہ طریقہ کرتا تھا, احتیاطیں. ہر ایک کا اتنا ذہن نہیں ہوتا, وہ تو ایک ہی بیسن پر استنجا خانے سے نکلے, بیسن پہ کھڑے ہوئے, چپل وہیں گندے, یعنی چپل کو بھی نہلا رہے, خود بھی وضو کر رہے ہیں اور گندا پانی بکھرا ہوتا ہے اسی میں دوسرا وضو کرتا ہے. بیسن بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, پھر اسی سے پانی گرتا ہے, وہ گندے پانی میں سے چھینٹے اڑتے ہیں اپنے بدن پر. احتیاط کا دور چلا گیا. اب احتیاط تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں کرنا چاہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے, اتنی آزمائش ہے. لیکن بہرحال کوشش تو کرنی ہوگی. تو اگر اپنا ترکیب قافلہ ہے تو اس میں تو یہ احتیاط ہو سکتی ہے کہ استنجا خانے کے چپل الگ رکھ دیے اپنے مکان میں, اور بیسن پر پابندی ڈال دی کہ چپل پہن کر کوئی وضو نہیں کرے گا, تو یوں آسانی ہو سکتی ہے. آپ نہیں کریں گے, آپ لے جائیں ساتھ, ایسے ہی کریں گے جیسے آپ فرمائیں گے ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ. تو کموڈ کا استعمال بھی یہاں سیکھ لینا چاہیے کہ کموڈ کے ذریعے بندہ پاک کیسے ہو, یہ بہت دشوار ہوتا ہے, بہت دشوار. ہم تو اپنا قافلہ ہوتا تو کیا کموڈ کی جگہ پہ وہ اجازت لے کر پہلے سے بات کر کے وہ WC ڈلواتے تھے, وہاں اس شرط پر دور رہتے تھے مکان اور تو مان جاتے تھے, اس شرط پر کہ خود ہی WC اپنا لگوائیں گے, مزدوری بھی دیں گے اور جا کر پھر کموڈ ڈلوا کے دیں گے, جیسا تھا ویسا کر دیں گے. تو پھر بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھائی تم ڈلوا لینا, ہم دے دیں گے پیسے, یہ بھی ترکیب بن جاتی تھی. باقی کموڈ میں مجھے تو تاحال کموڈ استعمال کرنا نہیں آتا, تاحال میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس سے پاک کیسے رہے. میں اپنے لیے تو سوچکا نہیں پڑتا, بہت مشکل ہے, لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ ترکیب ہوتی ہوگی ان کے پاس. اب یہاں بھی اپنے باب المدینہ بھی کموڈ آ گئے, اب یہ نئے نئے مکانات بن رہے ہیں, ابھی اس میں کموڈ. وہاں مسجدوں میں WC ہے. اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذہن وہاں بھی یہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو WC ہونے چاہیے, اس لیے مسجدوں میں WC ہے, گھروں میں کموڈ, ہوٹلوں میں کموڈ. صاحب کموڈ سمجھتے کہ نہیں, کموڈ کس کس کو نہیں سمجھ آ رہی, کموڈ کیا ہوتا ہے, یہ بیچارے نہیں سمجھ آ رہی. یہ کس کس نے کموڈ میں نہیں سمجھے وہ تو میں سمجھا دوں. نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارے صاحب, یہ دیوانے یار ہے, اصل ہے دعوت اسلامی یہی دیوانوں کی. کموڈ وہ ایک WC بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, سیدھی بات ہے کہ WC کیا ہوتا ہے, WC کون نہیں سمجھتا. جزاک اللہ, جزاکم اللہ. یار دیوانے WC بھی نہیں سمجھنا, آنے کی کرنا یار. آپ کو پیشاب لگاؤ اور فیضان مدینہ میں جو پیشاب کرنے کی جگہ وہاں جائیں گے نا تو وہاں جو کھڈے جیسی بنی ہوئی ہے نا جو سفید سفید, اس کا WC بولتے ہیں. اب یہ کہ یہ تو جو گھڑا بنا ہوا ہوتا ہے نا جس میں وہ پاؤں رکھنے کی جگہ, اس کو پائیدان بولتے ہیں, تو یہ WC کہلاتی ہے. اور جو جس میں کرسی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں, یعنی سمجھو وہ سفید سفید ایک گول پیالہ بنا ہوا ہوتا ہے بہت بڑا, سمجھے, فرش زمین سے اوپر ہوتا ہے, اسے کرسی کی طرح بیٹھتے ہیں اس پہ, تو وہ کموڈ اس کو بولتے ہیں. تو اب ہر جگہ کموڈ آ گئے دنیا میں, WC تقریباً رخصت ہو گئی ہے.
हमारे यहाँ काफी बाकी है अभी, नई इमारतों में कमोड की तरकीबें बढ़ती जा रही है। इस्तेमाल करना जायज है इसका, लेकिन साइंसी तौर पर भी नुकसानदेह कि इसमें आदमी फारिग नहीं हो सकता, सही मानों में पेट खाली नहीं होता बड़े इस्तिंजा में। कुर्सी की तरह बैठ कर तो पता नहीं पेशाब भी कैसे निकलेगा यार, ये आजमाइश है। पाँव रख कर बैठे तो वो कोनों पर, पाँव किनारियों पे तो हर आदमी तो नहीं रख सकता, गिर जाए। पाँव में तकलीफ हो या हेवी हेल्थी हो तो उसमें जगह भी नहीं होगी पैर रखने की। ये आजमाइश तो है, ये वहां जाकर ये तो यहाँ से सीख कर जाए। पापा जहाज में भी तो ये होंगे। जहाज में तो डिबिया होती है छोटी, उसी पे ये सब कुछ करना होता है, छोटा बड़ा इस्तिंजा, वो भी आजमाइश है। ये तो जहाज में तो WC का तस्वुर ही नहीं है, कभी देखी नहीं है। बसों में भी वो डिबिया, वो छोटी कमोड को मैं डिबिया बोलता हूँ। रुख का लिहाज, काबे की तरफ मुंह, ये बहुत मुश्किल। ट्रेन में पापा, ट्रेन में WC तो होता है, था कमोड आ गए अब। जी पापा। अच्छा, बाज़ जगह WC, बाज़ जगह वो ढूंढना पड़ता है। और तहारत और पाकीज़गी को ये समझते जो साफ सुथरा ज़ाहिरी नजर आता नहीं है, बाकी नजासत के ताल्लुक से वो जहन कम हो गया, बहुत कम हो गया। अगरचे कमोड इस्तेमाल करने में अगर कोई माहिर है, तजुर्बा हो गया तो वो पाक रह सकता है, तो दुश्वारी है इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सवाल व मेरा ये रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सवाल मेरा ये है कि 10 ज़िलहज की रात मुज़ल्फ़ा में गुजारना सुन्नत मौक़ूदा है, मगर रफ़ीकुल हरमैन के अंदर एक जगह जिक्र है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं रात मिना में गुजारना सुन्नत है, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? सफ़ा नंबर 203 पर लिखा है 10वीं 11वीं की रातें, तो फिर तो जुमला सही। हमारी रफ़ीकुल हरमैन में ये बहार शरीयत की इबारत लिखी हुई है। इस तरह का मसला लिखा है कि ये जो अय्याम हज हैं, इनमें जो है वो जब रात जिक्र की जाती है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है 10, 11 और 12 की रातें, तो ये लिखा है इस्तिलाह के तौर पर कि 10 की रात का मतलब होता है 10 का दिन गुजर के जो रात आएगी, जी जी, और 11 की रात का मतलब होता है 11 का दिन गुजर के जो रात आएगी, और 12 की रात का मतलब 12 का दिन गुजर के जो रात आएगी। अगर 13वीं की रमी करनी है तो वो भी सुन्नत है। अब वो असल वो लफ्ज़ की मौजूद है, 10वीं 11वीं 12वीं की रातें, तो की हटा दिया जाए ना तब एतराज बनता है, एक की मौजूद है। तो 10वीं 11वीं 12वीं की रातें, यानी 10वीं तारीख 11वीं तारीख और 12वीं तारीख की रातें मिना ही में बसर करना सुन्नत है। तो वो यूं इबारत तो दुरुस्त ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल अर्ज ये है सरकार के, वो बुजुर्ग कह रहे थे एक कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, तो उससे मेरा एक सवाल जहन में आया सरकार के, एक वाकया पिछले दिनों हमने सुना कि एक बेबी थी, उसके दिल में ख्वाहिश है कि मैंने हज पे जाना है, लेकिन वो गरीब थे। वो किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास चले जाते हैं, उसे उन्हें अर्ज करते हैं कि सरकार आप दुआ करें कि मैंने हज पे जाना है। तो वो बुजुर्ग उन्हें जो है ना बैठाते हैं और मुराकबा करा देते हैं, उन्हें तमाम अरकान हज करा देते हैं मुराकबे की सूरत में। तो क्या इस सूरत में हज हो जाता है? और दूसरा जो है ना ख्वाबों की सूरत में भी कुछ दरवेशों के सुना है कि हो जाते हैं, हज कराए जाते हैं तमाम अरकान सूरत में, महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें भी उस हाल में हो जाती हैं। तो क्या इनके लिए थोड़ी रहनुमाई फरमा दें? लख मेरे मुस्तफा की तलाश थी, मैं पहुंच गया हूँ ख्याल में, न थकन का चेहरे पे है असर, न सफर की पाँव में धूल है। सुभान अल्लाह। तो मुराकबे में जो हज किया और वाकई नहीं किया, और हज का सीजन भी नहीं है, आज कर लिया कल कर लिया, तो इस तरह ये हज नहीं होगा। जो हज फर्ज उस पर है तो वो अदा करना ही होगा, अगर है तो। तो सरकार दूसरी दुआ है इन सब दोस्तों के लिए जितने हाजिर हैं, आपके प्यार करने वाले,
दुआ करें इनके लिए खसूसी कि इस साल इनको महबूब आकल इस्लाम ज़ियारत भी फरमाएं और इन्हें हौज़ कौसर भी फरमाएं और अगले साल हम सब मदीना देखें। ये आपसे खसूसी दुआ है, आज आपने दुआ करानी है। इंशाअल्लाह शहनशाह बगदाद के सदके हम सब अगले साल हज पे होंगे, मदीना की ज़ियारत करेंगे। हौज़े कौसर की ज़ियारत तो वहीं करेंगे, ज़ियारत भी करेंगे और पिएंगे भी आका के हाथों से इंशाअल्लाह। यानी यहाँ हौज़े कौसर की ज़ियारत नहीं हो सकती। हाँ, हौज़े कौसर की आवाज़ सुनी जा सकती है। बाबा कैसे सुन सकते हैं? हौज़े कौसर की आवाज़ सुनी है किसी ने? किसी ने नहीं सुनी? पठान ने सुनी है, खान साहब और माशाअल्लाह। बाबा आपने सुनी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने सुनी है बाबा? मैं अभी सुन के दिखा देता हूँ। सुभान अल्लाह। आप कान में उंगलियां डालो सब। अब बिल्कुल नीचा मुंह कर ले और गौर करें। कोई वो आपको पानी चलने की आवाज आ रही है? जोर जोर से पानी चल रहा है, गौर करें। कान के अंदर उंगली। हाँ, किस किस को आई पानी चलने की आवाज? हाँ, तो हदीस शरीफ में कि ये हौज़े कौसर की आवाज है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफिई अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने अपनी किताब अल बुदूर साफिरा इसमें हदीस शरीफ नकल की। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह के कानों में उंगलियां डालने के बाद जो आवाज आती है वो हौज़े कौसर के चलने की आवाज है। सुभान अल्लाह। बाबा बगैर तो फीस आपको के मदनी फीस दे देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अब बेटे बेटे हौज़े कौसर की आवाज सुना दी। क्या बात है। तो चले गए, हो गए। ना करामत, ना कोई कश्फ, कुछ भी नहीं, मुराकबा भी नहीं, बगैर मुराकबे के बिल्कुल जीते जागते आपने सुन ली। सुभान अल्लाह। बाबा क्या मदनी फीस देंगे बाबा? की बरसात। रूहुल बयान में गालिबन जो मुताला किया था भी याद आता है। सूरह कौसर की तफसीर में भी ये रिवायत नकल की गई है, हदीस मौकूफ़ है और गालिबन शायद फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से है कि जिसे हौज़े कौसर की आवाज़ सुननी हो वो अपनी कानों में उंगलियां डाल ले, जो आवाज़ आए वो हौज़े कौसर की। इस तरह की रिवायत का मज़मून। ये बाकायदा पानी चलता तो महसूस होता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, हमने हौज़े कौसर की आवाज़ तो सुन ली, आपके गुलामों के इरशाद के मुताबिक, आपकी बेटी के इरशाद के मुताबिक, अब पिला भी दीजिए, जामे कौसर से महरूम ना फरमाइए। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं सल्लल्लाहु। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सबको हर महीने 3 दिन मदनी काफिले की नियत कर लेनी चाहिए इंशाअल्लाह। अगर पहले बोलता तो शायद बहुत सारे तैयार हो जाते, वो बोलते यार वो अभी को करामत नजर आने वाली है। नहीं बाबा अभी भी तैयार है सब। कौन कौन तैयार है? हर माह 3 दिन इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज का सबसे अफजल रुकन कौन सा है और हज करते वक्त हमको कौन कौन सी बातों को एहतियात में रखना चाहिए? हज के 2 अरकान है, इसमें रुकन आज़म यानी बड़ा रुकन जो है ना हज का वो है अरफात।
का वकूफ, और दूसरा रुकन तवाफुज ज़ियारा। एहतियातें इसकी ये कि रफ़ीकुल हरमैन अव्वल ताखिर पढ़ ले और इसको अच्छी तरह याद रखें, तो इंशाअल्लाह आप मोहतात हाजियों में आपका शुमार भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और बाबा अगर असां खबर न हुजे त असांजी 5-6 सालनि जी निमाज़ कज़ा रहियल आहे त पोइ असां उहा कहिड़ी तरह ते पूरी करे सघूं था कज़ा निमाज़? असांखे अंदाज़ो न आहे त असां केतिरियूं निमाज़ कज़ा कयूं। तव्हां इनजो अंदाज़ो करियो कि ज़न्ने ग़ालिब थी वञे कि मूं मथे 7 सालनि जूं नमाज़ूं कज़ा आहिनि, 7 सालनि जूं 6.5 ते अगर ज़न्ने ग़ालिब अचे 6.5 5 त 5 बाबा उनमें कुछ रहिजी जे करे वञनि। अगर ज़न्ने ग़ालिब थी वियो जी तो पोइ रेंजन जो मसलो न, तो वो रब जाने, हमारे तो खबर ही काने। तुंहिंजी मदनी फीस छा आहे साईं? जेको बाबा हुकुम कंदो इंशाअल्लाह असां पूरी करण जी कोशिशि कंदासीं। सुभान अल्लाह। न तो तव्हांजी मदनी हुलियो हुजे त मदीना मदीना इंशाअल्लाह सही मदनी हुलियो थी वञे, नंढी दाढ़ी जेकी आहे फ्रेंच कट, इनजी तौबा भी लाज़िम इंशाअल्लाह सही हाणे कंदासीं। माशा ने जदवल के मुताबिक तव्हांजो मदनी काफ़िले जो सफ़र थी वञे त मदीना मदीना हर महीने 3 ॾींहं इंशाअल्लाह जी। सल्लू अलल हबीब। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में क्या लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या एहराम में सोते वक्त पैर छुपा सकते हैं अपने? लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा सकते हैं, जायज़ है। और एहराम में पाँव पर सोते हुए जो चादर आ गई तो चादर आई या खुद डाली कोई हर्ज नहीं, बल्कि ब्लैंकेट भी अगर ओढ़ा और पाँव पर भी आया कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।